all whatever subjects I've learned so far, I feel so this NGO will be a great place to apply all that practical knowledge that I have seen so far. So as a part of that, I just applied for this and I came across on the LinkedIn post. So I was like, okay, why not? Let's just give it a shot. Yes, sir. Okay, so how much time can you devote for this particular cause? You know, like there will be outreach programs and all. So will you be able to give time? Sir, I will definitely be able to give time, but it's just कि अभी college में as such academic commitment के साथ कुछ issue ना हो, that will be fine. And I will appreciate अगर मेरे को priorly inform सब कर दिया जाए तो that is it. That Yes, sir. that will be done. That will be done. Yes, sir. Other than that, तो I will be able to. Okay, so you must have studied constitution law, right? Yes, sir. I have. Yes, sir. कौन सा आर्टिकल है लीगल एड के रिगार्डिंग? So it's Article 39A. Okay, you have read fundamental rights. Yes, sir. I have. Which fundamental right, according to you, is the most important for legal aid? Sir, I feel so. It is Article 21. Okay, Which why? is sir, you must be aware of that case law which is Husainiya Khatun versus State of Bihar, sir. उसमें वहाँ पे सिंपली जो जितने भी ट्रायल प्रिजनर्स थे उनका राइट जो आर्टिकल 21 था विच इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उनके लिए भी फ्री लीगल एड हो एंड उनका राइट टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इवन दो दे आर पुअर वो डिनाई ना हो दैट वाज द रीजन कि उन्हें किया गया था मतलब आर्टिकल 21 बेसिकली उनके लिए तभी वहां पे आया था कि इनको भी जो जस्टिस है वो सर्व किया जाए इवन दो दे आर पुअर. Okay, so अच्छा आप मेरे को ये बताओ what are the biggest challenges that are being that uh, is there for legal aid? What are the biggest challenges that you सर face in legal aid? आई फील सो ऐसे तो सर देर आर मैनी पीपल जो आर मतलब दे आर बेसिकली नॉट रियली अवेयर ऑफ द लीगल एड इन द फर्स्ट प्लेस. फ्री Okay, लीगल एड हाँ एंड कमिंग फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड इट सेल्फ तो सर वहाँ पे ज्यादातर उनको नॉलेज सब नहीं दिया जाता है बेसिकली अवेयरनेस एंड नॉलेज सब नहीं है तो दैट इन द फर्स्ट प्लेस थोड़ा सा एक एज अ ड्रॉबैक खड़ा हो जाता है एंड उसके अलावा वही थ्रू लीगल एड सर्विसेज एंड देन कैंपेनिंग एंड ऑल्सो वी कैन स्प्रेड अवेयरनेस सो ठीक यस है। सर. ठीक है, आप ये बताओ आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट में कुछ काम करा है अभी तक? सर सोशल मीडिया मैनेजमेंट में सर आई वाज अ पार्ट ऑफ अ मूड कोड कमेटी तो वहाँ पे बैक देन आई डिड रियली डू सोशल मीडिया का काम सब उसके अलावा अभी तक तो और नहीं. क्या काम करा था आपने उसमें? सर आई हैड टू कॉल्स जितने भी इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल सब हैं अदर देन दैट आई हेल्प्ड इन मेकिंग FIMT का मूड प्रपोजिशन सो then as a part of committee I had to put that on social media basically awareness and all again ki please come and participate and join so that was it. ओके, कोई आपका प्रायर एक्सपीरियंस है, कुछ और काम करा है आपने किसी और So एनजीओ में या no लीगल एड sir, से रिलेटेड? not an NGO or a legal aid I have not done but internships yes I have. ओके, रोहन प्लीज। श्रुति, अगर आपको मान लो फंडिंग स्पॉन्सरशिप टीम में अगर मान लो हम लोग ऐड करते हैं तो आप लोग को पीरियड इंस्ट्रक्शन अगर मिलता है एडवोकेट के थ्रू या हम लोगों के थ्रू तो आप उस पर काम कर सकती हैं। So by funding matlab basically I have to collect funds for NGOs right? यस। Oh yes sir I can. ओके श्रुति, व्हाट इज साइबर क्राइम? सर साइबर क्राइम एज सच अभी आप देख सकते हो एट प्रेजेंट काफी ज्यादा साइबर फ्रॉड सब हो रहे हैं जो भी जितना भी इंटरनेट AI के थ्रू जितने भी फ्रॉड स्कैम्स एट प्रेजेंट हो रहे हैं दे ऑल कैन कम इन साइबर क्राइम एंड दिस कैन इंक्लूड नॉर्मल हैकिंग फिशिंग etc etc.
What is the helpline number of cybercrime? So sorry, sir, I am not aware of that. Currently, sir, talk about legal aid. What is the helpline number of legal aid provided by Sir, NALSA? I am not aware of that. Currently, who is the patron in charge in NALSA? So again, I'm not. I know that it is NASA comes under CGI, but I'm not aware of the who's the specific charge. Yeah. Okay, okay. What is FIR? So it's a first investigation report. And जब भी कोई भी crime conduct and all सब होता है, तो this is basically the first thing that you have to do. And anyone can file a FIR who has witnessed a crime or like जिनके साथ हुआ है, so वही. Case related to cognizable offense or non-cognizable offense? So cases, uh, cases. So at present, I cannot really remember, but cognizable offenses Okay. में murder, rape crimes and all सबके. And yeah, rape का cognizable में निर्भया का sir, that was the quite famous case. So Do you have any idea any leading case related to FIR? any leading case, FIR. No, sir, I Okay, can. okay, I Surudhi, cannot. thank you. You can leave now. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Khurshid Alam, if I am audible, please turn on your camera and mic. Khurshid? Yes, am I audible, sir? Yes, yes, please turn on your camera. Sir, actually, I feel very sorry to tell you that I'm in outside right now, so I can't open the camera. So that's now. Okay, but if you, it's okay if you turn on. One second. Okay. Over to you, Shubham, sir. Sir, I have one request for you. If it is possible to continue the interview without turn on the camera. Okay, sir. Shubham, sir. Sir, you are not, yeah, I think you are muted. Shubham, sir. Khushid, am I audible to you? Yes, you are audible. Okay, so you are also comfortable in Hindi also, right? Yes, I am comfortable in both Hindi or English, and my Okay. So you are in first year, right? yes, I am a first year student. ओके सो आपने पहले कभी कुछ लीगल एड में काम करा है? नो सर, आई एक्चुअली आई वर्क विद एनजीओ, हमारी पहचान एनजीओ, उनके साथ मैंने करा था, जो कि एक सॉर्ट ऑफ लाइक लीगल एड ही था, क्योंकि हम लोग वहाँ पे रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग का काम करते थे वहाँ पे. So I have period coming to the interview. I have just completed my internship with हमारी पहचान एनजीओ. वहाँ पे हम रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग का काम करते थे. एंड द सेकंड इंटर्नशिप आई डन विद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस फॉर रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग. तो वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राफ्टिंग वगैरह का था. ठीक है, आप कितना टाइम यहाँ पे दे पाओगे? सर, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मतलब पर वीक आप कितना टाइम दे सकते हो? आप मतलब इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर जैसे ऑन कॉल अगर हम आपको थोड़ा एक दिन प्रायर बता दें, तो विल यू बी एबल टू टेक आउट टाइम टू कम to the outreach programs or any other requirements? Yes sir, if it is in Delhi, so I will comfortable. अगर कोई दूसरा स्टेट का होगा तो फिर थोड़ा सा मेरे को, क्योंकि बिकॉज राइट नाउ आई एम परस्यूइंग माय लॉ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो दिल्ली के अगर अंदर ही रहेगा तो एक दिन अगर आप पहले बता दो तो आई एम रिलेटिवली कंफर्टेबल, चलेगा वो मेरे को. अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल एड के लिए कौन सा प्रोविजन है, कौन सा आर्टिकल है, आपको आइडिया है? Actually, I have read about the legal aid, but currently I am not. Okay, फंडामेंटल राइट्स तो पढ़े होंगे. चलो पहले आप ये बताओ कि लीगल एड बेसिकली है क्या? Sir, helping by legal. If you are helping by legal means to someone, this is, I think, according to me, this is the legal aid. So इसके लिए
सरकार So ने if I am representing my client in a court, so is that a legal aid? Am I providing him legal aid? no sir. So, Then because if you are representing with getting the cost or getting the fee by the client, uh, so this is not a legal aid. Legal aid is free. If you are, so how can I explain? अगर आप तो सर जैसे कि अगर आप बिना अगर पैसे, मैं आप मेरा क्वेश्चन सुनिए। अगर मैं किसी कंपनी, कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, लेट्स से मारुति है, अगर मैं उसका कोई केस करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या मैं मारुति को लीगल एड प्रोवाइड कर रहा हूँ? नहीं सर लीगल एड के लिए प्रोविजंस बने हुए हैं। मैं लीगल मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसका लेजिस्लेचर अलग से बना हुआ है। उसमें सर्टेन 4 या 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि किस किस को लीगल एड मिल सकता है, कौन कौन से लोग हैं जो लीगल एड के अंदर आ सकते हैं। तो अगर आपके अगर हिसाब से आपका किसको क्लाइंट, मिलना चाहिए? सर जो आई थिंक जो मोस्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए, जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, जो बेसिक कम्युनिटी जिसके पास नहीं हो, जो अनअवेयर हो, अनएजुकेटेड हो लीगल मैटर्स को चलिए, लेके। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं? यस लिटिल बिट बट नॉट मच। ओके, सो चलिए ठीक है। अच्छा, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस रिगार्डिंग स्पॉन्सरशिप एंड फंडिंग? कुछ है एक्सपीरियंस इस चीज़ के रिगार्डिंग? सर मैंने हमारी पहचान एनजीओ में मैंने ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप मैंने करा था अप्रोक्सीमेटली 1 वीक के लिए, तो वो करा था, बस वही एक्सपीरियंस। स्पॉन्सरशिप करा था इन द सेंस कैसे कैसे करा था आपने? नहीं, हम लोगों ने एक इवेंट करा था राइट टू एजुकेशन को लेके, अवेयरनेस Okay. प्रोग्राम चलाया था, तो अच्छा। उसी के रिगार्डिंग हाँ, जो प्रोग्राम का जो कॉस्ट था स्पॉन्सरशिप वो मैंने प्रोवाइड करा था एनजीओ को। आपने मतलब पे करा था? नहीं प्रोवाइड कराया था स्पॉन्सरशिप सर, प्रोवाइड Provide कराया कराया। था? हाँ। चलिए ठीक है। रोहन, यू वांट टू आस्क एनी फर्दर क्वेश्चंस? प्लीज आस्क। यस, आपने खुर्शीद जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड किया था उसका अमाउंट आप बता सकते हैं? मॉनेटरी फंड में अप्रोक्स क्या था? सर 12,000 समथिंग था। और ये आपने अकेले किया था या आपकी टीम थी साथ में? नहीं एक्चुअली मतलब मेरी एनजीओ की टीम नहीं थी, मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के अकॉर्डिंग हुए थे। मान लो कि Be अगर मैं honestly, अगर मैं आपको स्पॉन्सरशिप में कुछ काम देता हूँ, हम लोग भी साथ में रहेंगे, सर भी साथ में रहेंगे, तो आप कर सकते हो? कर सकते हैं बट मैं बीइंग ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं सर, मैं स्पॉन्सरशिप में मैं कर सकता हूं बट आई डोंट थिंक मैं उस काम को लेके मैं अपना, जैसे कि मैं उसमें फिट हो सकता हूं बट मैं अपना उस काम के लिए मैं अपने आप को कैपेबल नहीं समझता हूं सर। मेरे से भी बच्चे अच्छे लोग हैं जो हाँ, स्पॉन्सरशिप बढ़िया से कर सकते हैं। आपके साथ एडवोकेट वगैरह भी रहेंगे, तो आप भी मतलब मैं अगर आपको टीम में डालूं तो आप कर सकते हो काम, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर, एक्चुअली मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, मैं काम कर सकता हूँ बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे से भी अच्छे स्पॉन्सरशिप्स जो कि देख सकते हैं वो मेरे से अच्छे कर सकते हैं। मेरे को आप अगर कोई दूसरा ब्रांच दे रहे हो तो मैं आई वुड हैप्पी। आपके पास दो ही ब्रांच है, सोशल मीडिया और स्पॉन्सरशिप। सोशल मीडिया में आपने काम नहीं किया है, इवन दो बच्चों ने सोशल मीडिया ऑलरेडी फुल करके रखा है, जंक ऑफ, दैट्स व्हाई रीजन आई एम मेरे को आस्किंग सोशल मीडिया दे दो, सोशल मीडिया दे दो आप मेरे को। सोशल मीडिया ऑलरेडी मैनी पीपल अप्लाई, दैट्स व्हाई रीजन आई एम आस्किंग यू। यू आर, इफ यू आर डूइंग वर्क, यू आर नॉट एज हेड मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया के मैं थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूं आपको। एक्चुअली सोशल मीडिया आई एम इन पार्ट ऑफ approximately 200 plus WhatsApp groups and approximately my personal groups that I run in my college or something, approximately वो 15 या 20 हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी चलते हैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम, प्राइवेट चैनल भी चलते हैं। तो आई थिंक मैं कर सकता हूँ सोशल मीडिया में। मैं अकेले ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे जो मैंने भी एक टीम बना रखा है सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए, मेरे साथ 4-5 लोग हैं, उनके साथ मिलके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो आई थिंक मान लो कि अगर मैं आपको स्पॉन्सरशिप में रखता हूँ तो यू आर डूइंग द वर्क और नॉट? एक सेकेंड, खुर्शीद, लेट मी एक्सप्लेन। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आपको जाके ढूंढना है कि हम किससे जाके बात करें। यस Am I right, Rohan? यस सर।
अगर अगर हमें कहीं जाना है, अगर हमें स्पॉन्सरशिप के लिए कहीं किसी को अप्रोच करना है, तो अगर हम उस टीम में आपको रखते हैं, तो आप वो वर्क हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? दैट इज व्हाट वी आर आस्किंग। विल यू बी एबल टू गो देयर एंड पिच टू द टू देम, टू दोज पर्सन्स की व्हाई दे शुड स्पॉन्सर अस एंड ऑल? विल यू बी एबल टू Uh, डू दैट? Sir, I will, but the first priority I will choose for the social media. So if you are putting me in the social media category, so this I is my am not first priority. basically If Kurtik, I not, am not asking what are you choosing right now. I am just asking you if I am provide you sponsorship domain, you will continue yes, or sir. not. No, I Okay, will okay. continue. I will Uh, continue. what is cyber crime? What's up? साइबर क्राइम क्या होता है कुर्तित? Actually, that is the crime that is committed by non-ethical weapons, which weapons that do not harm physically. Uh, I think. Okay. What is the helpline number of cyber crime? What? What is the helpline number of cyber crime? हेल्पलाइन नंबर ऑफ साइबर क्राइम एक्चुअली मेरे को पता नहीं है, बट उसका एक पोर्टल है, साइबर क्राइम ऑनलाइन रिपोर्ट करते हैं, साइबर क्राइम का पोर्टल Just I वो। am asking you what is the helpline number of cyber crime. If you have idea, you can say yes or no. नो सर, आई Okay. What is the helpline number of free legal aid provided by NALSA? थिंक 1022, आई थिंक सो, बट Okay. Who is the Chief Justice of India? व्हाट डू थिंक सर? हेलो, Currently, who is the Chief Justice of India? डॉक्टर कांत सर। Okay, okay. Kursit, thank you. You can leave now. ओके, थैंक यू सर। Isita, I am audible right now. Isita, I am audible right now. Yes, you are audible. Over to you, Subham sir. Subham sir. Okay. Yes, Isita, yes. introduce. Okay. Continue. Ishita, you are a first year law student, right? Yes, sir. Okay. So why do you want to join this organization? I want to join this organization to gain a experience in working with NGO और थोड़ा बहुत सोसाइटी को जैसे जान सकें, कुछ सोसाइटी में हम अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं, अपनी जो स्किल्स हैं उसको वर्क कर सकें एंड डेवलप Why कर not? सकें। Why not some other NGO? Why this NGO only? So it's about opportunity. जिस जहाँ opportunity मिल रही है, I'm just looking forward for the opportunities. Okay. So what is legal aid basically? Legal aid, sir, legal aid is basically वर्किंग द नीडफुल पीपल जिनको बहुत ज़्यादा लीगल के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनको सोसाइटी को प्रोवाइड करना कि किस तरीके से लीगली वर्क किया जाता है अगर उनके साथ कोई भी चीज़ गलत हो रही है या उनको कोई चीज़ नीड है जिसको हम लीगली वर्क कर सकते हैं, तो उसको प्रोवाइड करना। ओके, सो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लीगल एड के बारे में कहता है? सर, I'm not very sure, but it's under Directive Principal Policies वाला। Okay. I guess Article 42 or 44. I'm not very sure about it. Okay, so you are active on social media, right? Yeah. Okay, so do you have any prior experience in social media No, management not, or anything like that? not yet. So No, sir. if I put you in social media management team and I ask you to spread awareness, legal awareness, how are you going to do that? So I can put videos or put videos basically because don't have any such experience, but I can do it. Okay, which social media platforms are you active on, which you use regularly? Just Instagram. Okay, so how much time can you devote to this organization? So I can As devote in,
Like 4 to 5 hours 4 to 5 hours day. per day. Yes, sir. So it's Okay, from February, right? right. Yeah. Just a second. So you have also opted for sponsorship and funding. So do you have any prior experience in that? So I don't have any prior skills in any of You it, have but not, you have not, before this, you have not worked with any other NGO. no, sir. Okay, so if we send you to some uh, prospective sponsors to pitch them why they should sponsor us, will you be able to do that? Yes, sir. मतलब in Obviously, we are going to help you out. There will be other people also from our team. So will you be able to do that? yes, sir. I will be able to do that. Okay. ठीक है. Rohan, you can ask any questions if Ishita, you want what is further. cybercrime? Cybercrime is crimes related to what is happening through internet or networks, like cyber phishing and fake IDs and like that. What is the helpline number of cybercrime? What is? Helpline number of cybercrime. I don't know. Free legal aid defined in which article? As I told, it is under just a second. It is under DPSP. I'm not very sure about the article. It's either 42 or 44. I'm not like 100% sure, but it's either of them. Do you have idea what is the helpline number of free legal aid provided by NALSA? No. No. Currently, who is the Chief Justice of India? Suryakant. Mr. Suryakant. Okay, Sita, thank you. You can leave now. Thank you. Saloni, if I am audible, please turn on your camera and mic. Saloni, if I am audible, please turn on your camera and mic. Saloni? Saloni, I am audible. Please turn on your mic. Over to you, Subham sir. Okay, Saloni, you're a third year law student, right? Yes, right, sir. So do you have any prior experience in legal aid work? No, I have don't experience, no experience. This is the first time you are joining any organization Yes, in this yes. regard. Yes. Okay, what do you understand by legal aid? A parallel companion from the private, जो प्राइवेटली लॉयर होते हैं उनसे एक लीगल एड अलग होते हैं जो बिना किसी कॉस्ट या बिना किसी एक्सपेंस के लोगों को फ्री लीगल एडवाइसेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि आपको रिगार्डिंग किसी मैटर आपके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर Okay, Subi, if you don't mind, you can join in 2 minutes. हेलो am I audible? just Hello? yes, Yes, just a sir. second. I have joined you. Okay. Surbi, you can leave now. At the moment, After you can 2 join minutes. after 2 Sorry minutes, for. 2 to 3 minutes. Sorry. Can You can join in 2 minutes. After 2 Oh, minutes. okay. Thank you. Okay, so Saloni, what is Sorry, sir. what is the Sir, sorry, you are not audible. am I audible right now? Hello, am I Yes, audible? you are audible, Saloni. Yes, sir, you are audible. Okay. No. What is the article which talks about legal aid? Article of Constitution which talks about legal aid.
which article talks about legal aid? Do you know? So sorry, I don't know. Okay, so you have you must have read about fundamental rights. Yes. Which fundamental right, according to you, is the most important right for legal aid? So right of equity, right of freedom of speech. It's according to my opinion. Everybody has a right to. Do you know about DLSA and No NALSA? problem. Uh, I heard I heard about their workings, about how they provide legal uh, legal helps to the slum areas. How they uh, visit. See, are you uncomfortable in English? So we can switch to Hindi also. It's not an issue. If you are uncomfortable, हिंदी में भी बात कर सकते हैं. हाँ जी, हाँ जी. तो नालसा और डीएलएसए के बारे में आपको पता है? हाँ जी, थोड़ा बहुत मुझे पता है। जैसे उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर मान लो ये होता है कि पैरेलली वो काम करते हैं, पैरालीगल एड के लिए वो काम करते हैं। लाइक कि जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है, अगर मान लीजिए वहाँ पर किसी भी क्लाइंट को या फिर किसी भी जो एक्यूज है या फिर विक्टिम है, उनको ये लगता है कि उनको जो लीगल एडवाइसेस है वो सही नहीं दी जा रही है, तो हम उनका एक पैनल हर एक कोर्ट में होता है, ताकि वो हम वहाँ पर जा सके, उनको सीख कर सकते हैं बेसिकली कि हमारी ये लीगल प्रॉब्लम है, आप कोई सोल्यूशन हमको बता दीजिए। आपने कभी इंटर्नशिप करी है? सर आई डोंट हैव एनी प्रायर मैं बी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कभी कोई इंटर्नशिप की है। मैंने अभी एक फ्रेश स्टार्ट लिया है अपनी इस जर्नी में। चलिए ठीक है। आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में मतलब कुछ करा है सोशल मीडिया मैनेजमेंट में पहले कोई वर्क? नो सर, आई डोंट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस अबाउट दिस। आप कौन कौन सी एप्लीकेशंस पे एक्टिव हो सोशल मीडिया में? सर ऑन इंस्टाग्राम, ऑन व्हाट्सएप, स्नैपचैट, सो बेसिक्स। ओके, तो आप कितना टाइम डिवोट कर पाओगे अगर पर डे या पर वीक? सर टाइम डिवोटिंग के लिए तो 12 आवर्स या 13 आवर्स पर वीक? हाँ जी, नहीं पर डे। यू कैन गिव 12 आवर्स पर डे? हाँ जी। पढ़ाई नहीं करनी है? नहीं, पढ़ाई तो यू आर सब स्टिल इन थर्ड ईयर। पढ़ाई के साथ भी मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, चलो ठीक है। रोहन, इफ यू वांट टू आस्क एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन आस्क। सलोनी, आप 3 ईयर में हो, 3 ईयर एलएलबी में, और बीए एलएलबी या 5 ईयर एलएलबी में हो? 3 ईयर एलएलबी में हूँ और फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरा 6 सेमेस्टर चल रहा है। ओके, तो बेसिकली अभी आप जैसे इतना टाइम मैनेजमेंट कर सकती हो, तो मान लो कि अगर मैं फंडिंग के रिगार्डिंग आपको कुछ रिसर्च वगैरह दूं या कुछ टास्क दूं, तो आप कर लोगी उसे? हाँ जी, बस मेरे को एक प्रायर नॉलेज होनी चाहिए कि अबाउट मुझे किस रिगार्डिंग जो है वो वर्क करना है। बस आप मुझे वो थोड़ा गाइड कर दीजिएगा, बाकी डेफिनेटली मैं वो बता दूंगा, और हमारी टीम भी आपको बता देगी। बिना बताए आपको कोई काम नहीं मिलेगा, चाहे जो भी हो। हाँ जी। और मान लो कि अगर मैं अभी इतने इंटरव्यू हो रहे हैं, 50-60 लोग ऑलमोस्ट सेलेक्ट होंगे, ऑलमोस्ट 40 to 50 बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो उसका अगर मैं आपको टीम कोऑर्डिनेटर बनाता हूँ मैनेज करने के लिए, मान लो कि कोई ऊपर से आपको मैसेज मिलेगा, इन्फॉर्मेशन, फिर उनको शेयर करना है, बच्चों को बुलाना है, मान लो कि कल विजिट है हमारी हाई कोर्ट की, तो आप वो मैनेज कर लोगे? जी बिल्कुल, हाँ जी। ओके 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 सलोनी, यू कैन लीव नाउ, थैंक यू। ओके भाई, वो सुरभि को एक्सेप्ट कर लो यार, वो बहुत देर से 4 हाँ बार ज्वाइन बहुत, कर चुकी है। सर मैं 3 बार से भी लिख चुका हूँ व्हाट्सएप पे, प्लीज ज्वाइन, इसलिए मैंने सॉरी बोला है उसे। ये सर जो श्रेयांश है, इसका भी इंटरव्यू होगा, बट इसने मैसेज के लिए लगाया हुआ है साहिल सर ने, तो मैंने नहीं लिया, लास्ट में लूंगा। हेलो अच्छा, सुरभि, Yes, sir. प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। Okay, sir. सॉरी फॉर डिले।
Oh, no, Over to you, Shilpa. Soham. Okay, Surbi, you are a first year student, right? Yes, sir. Do you have any prior experience in legal aid work No, sir, I don't have any or PR experience. any other social work? Yeah. Actually, I don't have any prior experience, but I am in the group where we do work for a social NGO, but I haven't done anything right now. But in future, in Delhi University, I can do in future. I mean, I will have opportunities where I have to do something for the society or for the NGO, but right now I haven't done anything. ओके सो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? क्योंकि अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो मैंने पढ़ा नहीं है, बट हाँ क्योंकि मैंने प्रिपरेशन करा था तो मुझे नॉलेज है। कौन सा आर्टिकल लीगल एड के रिगार्डिंग है? आर्टिकल 39A। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं? यस सर। सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट कौन सा है? अगर ऐसे देखा जाए तो सारे फंडामेंटल राइट्स इम्पोर्टेंट है, इसमें स्पेसिफिक नहीं कर सकते, लेकिन अगर इफ आई हैव टू चूज आई विल से आर्टिकल 21 राइट टू लिव। ओके सो आप कितना टाइम यहाँ पे डिवोट कर पाओगे पर लेट्स से पर डे? आप कितना टाइम दे पाओगे? तो मेरा कॉलेज 8 बजे अदर से देन योर कॉलेज ऑब्वियसली कितना आप दे पाओगे? इट्स लाइक 2 hours आई गेस, 1 to 2 hours। ओके सो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में कुछ एक्सपीरियंस है? So I said I haven't done anything before, but अगर मेरे को कुछ करना होगा तो yeah I can do that. Are you active on social media platforms? Only in Instagram. I mean I'm not active, but I can handle it. Okay, you can handle it. So suppose there is I'll give you a situation. अगर एक कोई विक्टिम है सेक्सुअल ऑफेंसेस की, उसके रिगार्डिंग हमें एक पोस्ट करना है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू आर गोइंग टू टेक so that we do not get into legal troubles? So I will not mention the party's name, मतलब कि किसने करा है, ओके और ना मेरे जो पार्टी का नाम है उसको भी रिवील नहीं करूँगी, बट मैं जो सिचुएशन हुआ है उसको हाइपोथेटिकली मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगी ताकि अवेयरनेस मैं फैला सकूँ, और मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी लिखूँगी ताकि जो सामने वाला इंसान है उसको पता चल सके कि इससे क्या क्या इश्यूज भी हो सकते हैं या क्या क्या लीगल ट्रबल भी मुझे मतलब फेस करना पड़ सकता है। अच्छा, लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए एक नेशनल अथॉरिटी बनी हुई है, नालसा, उसका इट्स फुल नालसा, फॉर्म क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट और अथॉरिटी, नेशनल लीगल अथॉरिटी सर्विस समथिंग। अच्छा, लीगल एड किसे रिक्वायर्ड होता है? आई मीन कौन एलिजिबल होता है? ओके Yes. सो तो वुमेन्स और चिल्ड्रन होते हैं जो 18 ईयर्स से कम होते हैं, मेन जो SC/ST कैटेगरी से होते हैं, और कोई भी ऐसा पर्सन जिसका इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक एनुअल इनकम आई गेस 3 लाख से कम होता है तो उन्हें मिल सकता है, और कोई भी वल्नरेबल सोसाइटी जो होता है उन्हें भी मिल सकता है। अच्छा, अगर एक IAS है, IAS तो जानते हो आप, अगर एक IAS है SC/ST से बिलोंग करता है तो इज ही एलिजिबल फॉर लीगल एड? नो सर, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो क्रीम सोसाइटी होता है SC/ST में भी वो उनको, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें वो सारी सुविधाएं फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होंगी जो एक SC/ST कैटेगरी को प्रोवाइड होनी चाहिए, जैसे कि रिजर्वेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो लोग अपने लिए मतलब अफोर्ड कर सकते हैं एक लॉयर, तो उन्हें लीगल एड आई डोंट थिंक कि उन्हें ये फैसिलिटी मिलेगा। चलिए, अगर आपको कुछ स्पॉन्सरशिप एंड फंडिंग में भी ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो नहीं होगा यस सर। एज यू टोल्ड मी,
आप मेरे को ये बताइए कि अगर मैं आपको अपनी टीम के साथ कहीं पे भेजूं, इस एनजीओ के लिए ओके स्पॉन्सरशिप हमें एक्वायर करनी है, ओके अगर सर मैं भेजूं तो विल यू बी एबल टू go there and pitch ki why that person should sponsor us? Sir, I can do that, but before that, I have to study about it. I mean, what are the facilities and why they can क्यों वो हमें फंड करें, तो उसके लिए पहले मुझे प्रिपेयर करना होगा और मुझे जानना होगा कि इस एनजीओ के बारे में और इसके बारे में स्टडी करना होगा उसके पहले, ताकि मैं प्रिपेयर कर चलिए पाऊँ. चलिए ठीक है। रोहन, आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। बेसिकली साइबर क्राइम क्या होता है सुरभि? सो साइबर क्राइम इज बेसिकली कि इंटरनेट में जो भी ऐसा क्राइम जो इंटरनेट के थ्रू होता है, वो साइबर बुलिंग हो या फिर अगर मैं किसी को थ्रेट दे रही हूँ, या फिर इंटरनेट में जो थेफ्ट होते हैं, या किसी को ऑनलाइन बुली किया जाता है, या कोई प्राइवेसी लीक होता है, प्राइवेट फोटोज एंड ऑल, तो उसे साइबर बुली कहते हैं. और साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर पता है आपको? 1930 ओके। 19. और उसके बाद साइबर साइबर क्राइम जो है किस एक्ट के अंदर आता है, कोई आइडिया आपको? मुझे ऐसा स्पेसिफिकली नहीं पता है सर. तो आई थिंक आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में। यस सर. नो कॉन्ट्रैक्ट आई तो पढ़ा मीन. होगा आपने। यस सर. कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 2E. 2E। अच्छा, मैं पूछ रहा था, अगर मान लो कि सर ने बताया जैसे फंडिंग के लिए आपको बताया जाए, तो आपने बोला मुझे उसके लिए आइडिया चाहिए। हम लोग बेसिकली उसके लिए बताते हैं, बिना बताए तो स्पॉन्सरशिप आप नहीं कर सकते हो। यस और सर. आपने बोला कि मैक्सिमम 2 आवर दे सकते हैं, तो कभी कभी विजिट होती है तो सुबह 9 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक चलती है मे बी। तो ऐसे ओके. सिचुएशन में आप फिर प्रेजेंट नहीं हो पाओगी मे बी, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसा भी तो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये वीकेंड्स पे भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि फंड ऑब्वियसली, रेजिंग. बट ये फंडिंग वीकेंड्स पे हो सकते हैं, आई एग्री विथ यू। बट मान लो कोई विजिट है, अब हाई कोर्ट आपको जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, या कोई विजिट है, न्यूज की विजिट है जो कि संडे को पॉसिबल नहीं है और सैटरडे को भी, तो फिर So आपका वर्किंग आवर में आना I'll be there. Obviously, I have to skip my college to be है। there. ओके ओके सुरभि, थैंक यू, यू कैन लीव नाउ। Okay, thank you, sir.